Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we will learn about the properties of subtraction. So what are properties? Property means some facts which we can use while solving the problems of subtraction. So first of all, the first property of subtraction is the zero property. It means when we subtract zero from any number, the difference is number itself. ओके इट मीन्स आप अगर आप किसी भी नंबर में से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो डिफरेंस होगा अगेन द नंबर इटसेल्फ, फिर से वही नंबर आ जाएगा. तो हेयर आई हैव टेकन 3 एग्जांपल्स. तो सबसे पहले मैंने एक स्मॉल नंबर लिया है 7 माइनस ज़ीरो. तो इट्स क्लियर टू यू इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम 7 देन व्हाट विल बी द डिफरेंस. क्या आंसर आएगा 7. ओके और अगर आप ग्रेटर नंबर भी लेते हो 15 माइनस ज़ीरो करेंगे देन अगेन द आंसर इज़ 15 इटसेल्फ. और 275 माइनस ज़ीरो करें तो अगेन इट विल बी 275 बिकॉज इट इज़ फैक्ट that if we subtract 0 from any number whether it is small or it is large, the difference is the number itself. Okay, now the second property is difference of two same numbers is equal to 0. तो ये भी फैक्ट है, ये भी क्लियर है कि अगर हम किसी नंबर में से सेम नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा. तो हेयर अगेन आई हैव टेकन एग्जांपल्स. तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट 13 फ्रॉम 13 their difference will be 0. and 675 minus 675 अब large number है because the numbers are same so their difference will be 0. Okay, now the third property is the sum of subtrahend and the difference is always equal to minuend. What is the meaning of this property? This property is saying that if we add the difference and the subtrahend, the sum will be equal to the minuend. So we have discussed about the terms of the subtraction in our previous video, that the number from which we subtract, that is minuend, and the number to be subtracted, that is subtrahend, and the answer which we get, that is difference. It means जिस नंबर में से हम माइनस करते हैं वो minuend होता है, उसको minuend बोलते हैं. और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो subtrahend है. और जिस जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, आंसर मिलता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसको डिफरेंस बोला जाता है. तो दिस प्रॉपर्टी सेज व्हेन वी ऐड difference and subtrahend, the sum will be, the answer will be equal to the minuend. So here I have taken an example. Here I am subtracting 2 from 9 and the difference is 7. Here 9 is minuend, 2 is subtrahend, and the difference is 7. And according to property, when we add 2 and 7 means subtrahend and difference, the answer should be equal to minuend. And here I had added these 2 and 7, this is equal to 9, and minuend is also equal to 9. So by using this property we can check the difference, whether the difference is right or wrong. If the sum is equal to minuend, it means our difference is right. Okay, so here I have again taken वन मोर एग्जाम्पल ऑफ 3 डिजिट नंबर. तो यहाँ पर भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे जो डिफरेंस मिला है दैट इज़ 532. तो अगेन जो टॉप टर्म है दैट इज़ minuend और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो subtrahend है और जो आंसर मिला है वो डिफरेंस है. मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरा सम सही है या गलत है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगी. ये जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं subtrahend एंड डिफरेंस, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं. तो यहाँ मैंने ऐड भी किया है. अब यहाँ पर जो subtrahend है दैट इज़ 203 एंड डिफरेंस इज़ 532. तो इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद मुझे जो आंसर मिला है 3 + 2 5, 0 + 3 3, 5 + 2 7. और ये जो आंसर है दैट इज़ 735. और इसको मैंने किसके साथ चेक करना है, minuend के साथ. तो minuend is also 735. It means the
क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज चेक्ड, चेक भी हो गया कि बिल्कुल जो आंसर है हमारा डिफरेंस है वो करेक्ट है। ओके, तो वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी टू चेक द आंसर ऑफ द सब्ट्रैक्शन। द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन ऑरली। तो ऑरली सब्ट्रैक्ट हमने लास्ट वर्कशीट्स में ऑरली ऐड किया था। अब ऑरली सब्ट्रैक्ट भी सेम प्रोसीजर है। इफ़ नंबर हैव सेम नंबर ऑफ zeros वी कैन सब्ट्रैक्ट दैट टाइप ऑफ नंबर orally. Okay, so here I have taken examples. So 90 minus 50, in 90 and 50 in both number there are 1 0, so the difference should have 1 0. ओके, यहाँ भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0 है, तो डिफरेंस में भी कितनी 0 आएगी, 1 0 आएगी। और नंबर्स क्या हैं, 9 और 5, और इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, सो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40. नाउ 600 माइनस 400, in 600 there are 2 zeros, and in 400 again there are 2 zero, and in the difference there will be 2 zero also. यहाँ भी 2 zeros हैं, इधर भी 2 zero हैं, तो डिफरेंस में भी 2 zero ही आएंगी। तो नंबर्स क्या हैं यहाँ पर, 6 और 4, और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, इट इज़ 200. नाउ इन 10,000 एंड 8,000, अब यहाँ 10,000 में आपको लग रहा है कि यहाँ 1 है और 1 के साथ 4 zeros हैं, और यहाँ 8 है तो 8 के साथ 3 zeros हैं। ठीक है, तो क्या इनमें तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो डिफरेंट हो गई, इसमें 4 zeros है, इसमें 3 zeros हैं, तो क्या हम इनको ऑरली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो इन केसेस में हमने क्या करना है, हमने 3 zeros को सेपरेट कर लेना है। 3 zeros 10 के साथ 3 zeros हैं, और यहाँ 8 के साथ 3 zero हैं, तो आंसर में भी 3 zeros आएंगी, और 10 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल टू 2। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम में आते हैं और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो यू कैन separate the number of equal zeros, okay, and in the rest of the number you can subtract. Okay, now there is worksheet 5 which we have done, but 2 questions are left in that worksheet, that is question number 3 and 4. Today we will discuss about the question number 3, that perform the following subtraction and check the answer. In this question what you have to do, you have to subtract and then check your answer. ओके, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर को चेक करना है, और चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने अप्लाई की थी अपने सब्ट्रैक्शन के सम को चेक करने के लिए, हम सब्ट्रेंड और डिफरेंस को ऐड करेंगे और उसको मिन्यूएंड के साथ मैच करेंगे। ओके, तो आई विल डू थर्ड क्वेश्चंस ए पार्ट हेयर। 9,347 माइनस 1,251, तो इस क्वेश्चन में मुझे 9,347 में से 1,251 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर आंसर को चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, 7 माइनस 1 दैट इज़ 6, and we cannot subtract 5 from 4, so 4 taken borrow from the 3, so 4 become 14 and 3 become 2, तो 14 में से 5 माइनस करेंगे आप लोग, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 9, एंड 2 माइनस 2 इज़ 0, 9 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8। ये तो हम लास्ट वर्कशीट में लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें किस तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है, ये चीज़ तो क्लियर है। नाउ द चेक, अब सब्ट्रैक्शन तो हो गई, अब हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमें जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं, दैट इज़ सब्ट्रेंड एंड डिफरेंस, मैंने फर्स्ट लेटर ही लिया है, एम स्टैंड्स फॉर मिन्यूएंड, एस फॉर सब्ट्रेंड एंड डी फॉर डिफरेंस। तो मुझे यहाँ पर सब्ट्रेंड और डिफरेंस को ऐड करके देखना है, तो मैंने सब्ट्रेंड किया है 1,251, इसको लिखा है, और डिफरेंस इज़ 8,096 और इसको लिखा है, और इन दोनों को ऐड किया है। 6 + 1 7, 9 + 5 14, 1 कैरी, 2 + 1 3 एंड 8 + 1 9। अब मुझे चेक करना है क्या ये जो सम है, इनका एडिशन का जो आंसर है, क्या वो इसके इक्वल है या नहीं। तो यहाँ ये इक्वल है, हेंस चेक, सो वी कैन say that our difference is absolutely correct. Okay, so there are some more parts which you have to solve
Okay, and the fourth question is find the difference between the largest number of 5 digit and the smallest number of 3 digit. Here you have to write largest 5 digit number and smallest 4 digit number, and to find the difference what you will do, you will subtract the numbers. Okay, and the next worksheets are also based on the properties. Worksheet 6 is based on ज़ीरो प्रॉपर्टी. ये भी हमने डिस्कस की है कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी नंबर द डिफरेंस इज नंबर इटसेल्फ. तो ये आपको ये भी वर्कशीट उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए सॉल्व करनी है. नेक्स्ट वर्कशीट 7 इज़ बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑरली. इसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑरली करेंगे. अगेन आपने इक्वल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को सेपरेट करते जाना है और नंबर्स में नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आंसर होगा वो लिखते जाना है. क्लियर? हमने अभी डिस्कस किया है. तो these are our today's work. So thank you very much.